chemical equilibrium. Basically, it gives you idea about the extent of reaction. कोई reaction कितना possible है कितना नहीं. But ये जो chapter है, ये theoretical approach है. समझा? किसी भी reaction की मतलब extent of reaction को discuss करने के लिए इसका ही एक similar chapter है जो practical approach है 12th standard की जिसका नाम है chemical kinetics. ठीक है? यहाँ पे हम जो भी बोलने वाले जो भी बातें करने वाले ना वो approach क्या होगी आपकी theoretical होगी. ठीक है? क्या क्या पार्ट्स कवर करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट लॉ ऑफ मास सेक्शंस टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स कौन से फैक्टर है जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या कर सकते हैं अफेक्ट कर सकते हैं. ठीक है सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. इनिशियली जो पहला सबसे डिस्कशन है वो है रिगार्डिंग द टाइप्स ऑफ चेंज. जो शुरुआत के पार्ट है वो ऑलरेडी आपको पता है केमिस्ट्री में देयर टू टाइप्स ऑफ चेंजेस टेक प्लेस वन इज कॉल्ड फिजिकल चेंज एंड द अदर वन इज कॉल्ड केमिकल चेंज. Physical change is basically which involve the change in the physical state of the substance. When water solid converted into water liquid, बराबर water liquid converted into water vapor. तो ऐसे टाइप के जो reactions होते हैं उनको बोला जाता है physical reactions. Chemical reactions are basically those reactions which involve the change in the substance basically, where old bonds are broken and new bonds are formed. ऐसे reaction जहाँ पे पुराने वाले bond टूट जाएं और नए वाले बॉन्ड क्या करें जो नेचर में होता है. But changes in which chemical composition of substance will change and physical change may or may not be occur. Sometimes solid gets converted into aqueous, sometimes that solid gets converted into gases, sometimes that solid remains solid only. तो कुछ भी हो सकता है. इसलिए वहाँ पे लिखा है physical change हो भी सकता है नहीं भी हो सकता but substance में chemical change आएगा. बराबर ये सारी reaction और आपको ये बात एकदम क्लियर पता है कि ये जितनी भी टाइप के ये सब रिएक्शंस होते हैं ठीक है जिसका बात होता है all this reaction occurs at constant pressure and temperature. ठीक है the most important one the types of chemical reaction. The first one is on the basis of heat. The two processes one is endothermic and the other one is exothermic. Basically, endothermic processes are those in which heat is absorbed. Exothermic processes are those in which heat is evolved is a better word as compared to release. In these type of process, the delta H is positive and your delta H is negative. EQ बताया था यार. Enthalpy of product is always greater than the enthalpy of reactant. And your the enthalpy of reactant is greater than the enthalpy of product. ठीक है. Next. In these cases, products are less stable, reactants are more stable. When the reaction is exothermic, everybody knows products are more stable. क्योंकि products से energy release हुई ना, और energy release होना ही क्या होता है? Stability बढ़ना. Energy release होना ही क्या है? Basically stability बढ़ना. On the basis of nature, there are two types of processes. One is irreversible, and the other one is reversible. We have already discussed regarding the irreversible process and reversible process. आज मैं आपको समझाना चाहता हूँ irreversible reaction and reversible reaction. Let me give you few examples. जैसे मैं सबसे पहला एग्जांपल मेरा ऐसा दे रहा हूँ कि इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए कि HCl रिएक्ट हो रहा है अगर NaOH के साथ. ठीक है. What happens when HCl is mixed with NaOH? Simple answer है. It results in formation of NaCl along with water. बराबर. The reaction is of strong acid and strong base. During the process, energy is also released. बराबर. Change in enthalpy ना, which is called change in neutralization. ठीक है. NaCl plus water बन गया. क्या मैं सोडियम क्लोराइड को वाटर के अंदर ऐड कर दूं तो HCl और NaOH को वापस दे देगा? नहीं. किसी भी केस में नहीं देगा. मतलब ये एक ऐसा रिएक्शन है जो एक सिंगल डायरेक्शन में ही पॉसिबल है. इसको आप रिवर्स कर ही नहीं सकते भाई. यहाँ पे ऐसा बात नहीं कि हो सकता है नहीं हो सकता है, खुद से हो सकता है किसी एनर्जी देके हो ही नहीं रहा है. HCl plus NaOH
HCl plus NaOH give you NaCl plus water, but when NaCl is mixed with water, ऐसा थोड़ी ना कि पानी हमारे पास हमने सॉल्ट डाल दिया तो हम एसिड और बेस बना लिए। जब मैं पानी पी रहा हूँ जो सॉल्ट है जिसके अंदर, तो मैं एसिड और बेस पी रहा हूँ, इज इट? नो, ये होता ही नहीं है। अब समझे मेरी बात? तो ये रिएक्शन सिर्फ एक सिंगल डायरेक्शन में पॉसिबल है ना, ये रिएक्शन सिर्फ एक सिंगल डायरेक्शन में पॉसिबल है। दैट्स व्हाई द रिएक्शन इज कॉल्ड इरिवर्सिबल। वन मोर एग्जांपल, मैं इथेन का कंबशन या मीथेन का कंबशन ले रहा हूं, ठीक है? दैट इथेन ऑन कंबशन गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। दैट इथेन ऑन कंबशन गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इथेन ऑन कंबशन गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। मतलब इथेन को आपने जला दिया, उसके जलने पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिला, क्या उसी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को जमा करके आप इथेन बना सकते हैं? नहीं। तो दिस रिएक्शन इज पॉसिबल ओनली इन सिंगल डायरेक्शन। That's why such reactions are called irreversible, जिनका रिवर्स आना पॉसिबल ही नहीं है, and therefore they are represented by single line। ठीक है? अब एक और एग्जांपल आपको समझाता हूं, ये देखिए। When nitrogen gas react with hydrogen gas and produces ammonia, समझा? ये प्रोसेस दूसरे डायरेक्शन में भी जाएगा। Once you start heating that ammonia, I repeat, once you start heating that ammonia, तो मैं यही चीज को रिवर्स भी कर सकता हूं भाई। N2 plus H2 बैलेंस कर देते हैं लोग, तो ये प्रोसेस दोनों तरफ हुआ ना, A से B भी बन सकता है और B से A भी बन सकता है। That's why the process is called reversible and these are called irreversible। ये irreversible process बोले जाते हैं और ये reversible बोले जाते हैं। ऐसा समझ में? So let's see few points related with irreversible and reversible। Here reaction proceed in one direction only। Your reaction proceeds in both the directions, A to B, A to B, B to A, but can be written like this। These are the representation for reversible process। ये समझा जो मैंने बोला अभी? ठीक है, ठीक। ये वही एग्जांपल जो मैंने बोला, सिंगल एरो, डबल एरो। This is the important line। If I start with 1 mole of HCl and 1 mole of NaOH, if I start with 1 mole of HCl, 1 mole of NaOH, मैं ऐसे लिखता हूँ, ये देखिए, ये कॉन्सेंट्रेशन हो गया, ये टाइम हो गया। आपने 1 मोल HCl और NaOH ले लिया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो गया वो, ठीक है? वो तुरंत रिएक्ट होना स्टार्ट होगा, बराबर? HCl रिएक्ट होता रहेगा NaOH के साथ। इस तरीके से मान लीजिए HCl plus NaOH चल रहा है, at T equal to 0 है, 1 मोल give NaCl plus water जो 0 0 है, ठीक है? थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, ये 1 मोल पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा। ये कितना मिलेगा? 0 0। ये कितना प्रोड्यूस हो गया? 1 1 अकॉर्डिंग टू कोएफिशिएंट रेशियो, यस और नो? ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ, शुरुआत में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बहुत ज्यादा था, बराबर? धीरे धीरे कम होता है, एक ऐसा टाइम आया जब खत्म हो गया। दिस इज T 100% बेसिकली, बराबर? मतलब ये वो टाइम होगा जहां पे रिएक्शन में, जहां पे 100% रिएक्शन हो गया, कंप्लीट हो गया पूरा। But the concentration of reactant becomes 0 at this stage, at this point, at this time the concentration of reactant becomes 0। ये बात क्लियर है एकदम? ठीक है? तो यहाँ पे रिएक्टेंट खत्म हो गया ना, ऐसे यहाँ कभी नहीं होता, बराबर? क्योंकि कुछ ना कुछ उस तरफ से इधर भी आ रहा होगा ना, ये प्रोसेस दोनों डायरेक्शन में चल रहा होगा, ये प्रोसेस दोनों डायरेक्शन में चलेगा। कम आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, वो भूल जाओ, कुछ तो आ रहा होगा, तो इसका रिएक्टेंट कभी खत्म नहीं होगा। मतलब रिएक्शन कभी कंप्लीट होती ही नहीं है। इस रिएक्शन में इफ आई प्लॉट a curve between concentration and time, it goes down 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 down, फ्लैट लाइन आ जाएगी। अब उसके बाद जो चेंज होने वाला नहीं है, the concentration of reactant remain constant हो जाएगा। इसको टच नहीं किया ना, मतलब 0 नहीं हो। मैं यही बोलना चाहता हूं कि इसमें 0 हो सकता है, इधर 0 होना पॉसिबल नहीं है। क्लियर है बात? नेक्स्ट, इसका क्या लॉजिक होगा? इट टेक्स प्लेस इन ओपन वेसल्स, बराबर? इट टेक्स प्लेस इन क्लोज्ड वेसल्स। ये एग्जांपल देखो, मैं अगर CaCO3 की बात करता हूं, ठीक है? once you start adding that CaCO3, it will give you CaO plus CO2, solid gas, बराबर? solid, calcium carbonate is solid ना, solid gas। So when you start hitting that CaCO3, this is the container, मान लीजिए कंटेनर ओपन है, तो CO2 तो बाहर निकल गया ना, आपके दौड़ के पकड़ के लिए क्या होगा वापस के लिए?
रिएक्शन रिवर्स करने के लिए? नहीं ना, इसके लिए कंटेनर शुड बी क्लोज। तो ये एक टाइप की कंडीशन हो गई रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए कि फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन दैट कंटेनर शुड बी क्लोज कंटेनर, वरना तो प्रोडक्ट बाहर ही चला गया ना भाई। नहीं समझा? तुम बोल रहे हो कि नहीं ओपन कंटेनर है, इसका मतलब आप ऐसा बोलना चाहते हो कि व्हेनेवर वी राइट सिंगल एरो तो मतलब वो रिएक्शन ओपन कंटेनर में हो रहा है, एंड व्हेनेवर वी राइट क्लोज दैट डबल एरो तो इसका मतलब रिएक्शन क्लोज कंटेनर। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। नहीं समझा मेरा बात? ठीक है, तो CaCO3 व्हेन इट इज हीटेड अगर इक्विलिब्रियम लाना है तो क्लोज कंटेनर में ही होना चाहिए। नेक्स्ट, ये जो कर्व के बारे में मैं बात कर रहा था, ठीक है, ये चेंज है, हियर इट इज कंसंट्रेशन, यहां पे वो टाइम है, यहां पे कंसंट्रेशन, यहां पे टाइम है, ठीक है, गलत लिखा हुआ है वो। ये पीडीएफ में आपके साथ शेयर कर दूंगा, आपको क्वेश्चंस करने की जरूरत है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने की जरूरत है, ठीक है, शुरुआत के पॉइंट्स लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। It involves limiting reagent, of course limiting reagent is required। इधर ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि पूरा रिएक्ट ही होने वाला ही नहीं है, दोनों बच जाएंगे बाद में। इधर समझा लिमिटिंग रिएजेंट कैसे होगा? सपोज इफ यू स्टार्ट विद 1 mole HCl and there is 0.1 mole NaOH, so I think 0.1 mole of NaOH will be the limiting reagent। आपका ये 1 मोल पूरा काम नहीं आएगा, इसका सिर्फ 0.1 काम आएगा, because limiting reagent it decides the formation of product। Limiting reagent is something where decides the formation of product। यही प्रोडक्ट की फॉर्मेशन को डिसाइड कर सकता है, इसलिए वहां नेसेसरी है क्योंकि सिंगल एरो, इसलिए हमने पूरे मोल कॉन्सेप्ट के चैप्टर में कहीं पे डबल एरो लिया ही नहीं था, सब जगह सिंगल एरो ही लेते थे। समझा मेरा बात? नेक्स्ट, नो रूल ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, देयर इज समथिंग कॉल्ड इक्विलिब्रियम जो यहां नहीं आता, यहां आएगा। क्या है इक्विलिब्रियम? विल डिस्कस, ठीक है ना। लेट्स अब मान लो सपोज कि अपन सब जा रहे हैं आउटिंग, कैंप जा रहे हैं सपोज, ठीक है, और ये कैंप, हाँ सपोज ही मान ले तो मान सकते हैं ना भाई, बोलो। सो अभी वो जो रिएक्शन है रिवर्सिबल वाला, हाँ। तो उसको बैलेंस करने की क्या जरूरत है? क्योंकि पता ही नहीं ना कितना रिएक्ट हो रहा है कितना नहीं हो रहा। मोल के हिसाब से तो बैलेंस करना ही पड़ेगा, जब आप ऐसा बोलोगे एक सर्टेन अमाउंट आपको दे दिया गया, बराबर, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि इधर में कुछ नहीं लिखो? हाँ, मतलब कितना रिएक्ट हो रहा है वो कैसे पता ही नहीं चलेगा ना। हाँ, चलिए मैं ऐसा मान लेता हूँ कि एक सर्टेन मोल है, बराबर, एक लेक्चर रुकेंगे ना आपको इस बात का आंसर अपने आप मिल जाएगा, ठीक है, अभी नहीं समझा सकता मैं ऐसा मान के, बराबर। नाइट्रोजन जब चलो एक ट्राई करके देख ले तो शायद समझ, नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो उसके एक रेशियो होता है, कितना भी नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा हो, अगर आपको बोला गया कि 20 मोल लिया गया है, बराबर, मान लो अगर 5 मोल ही रिएक्ट हुआ, हम इक्विलिब्रियम फाइंड आउट कर लेते हैं कि कितने में इक्विलिब्रियम है, उसकी वैल्यू है अपने पास, ठीक है, तो अगर 5 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट हुआ तो फॉर 5 मोल ऑफ नाइट्रोजन यू नीड डैश मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो ये कैसे पता चलेगा? बैलेंसिंग से। आया समझ में? ये तो मैंने बहुत सिंपल तरीके से समझा दिया आपको कि नंबर 2 डालना है, क्यों बैलेंस करना है, ठीक है, गिव मी सम टाइम, नेक्स्ट लेक्चर जब स्टार्ट होगा ना तो हम यही चीज करने वाले हैं, हम इक्विलिब्रियम कैलकुलेशन से ढूंढेंगे कि कितना वैल्यू आएगा। मैंने बोला ना ये चैप्टर पूरा थ्योरेटिकल है, आप सारी चीजें थ्योरेटिकली ढूंढ पाओगे, कितना आ रहा है कितना जा रहा है सब पता चल जाएगा आपको, ठीक है, क्लियर बात ना। चलो अब हम जा रहे हैं सपोज बाहर, बराबर, फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं, बराबर, पैसा अपना अपना देना भाई, हाँ, तो सपोज अपन गए नेपाल, किधर गए? नेपाल भी फॉरेन कंट्री में ही आ जाए बाबा, नहीं नेपाल नहीं जाना है, अच्छा बांग्लादेश नहीं बोला, वो क्यों नहीं सोच रहे हो? नेपाल बोला तभी भी थोड़ा सोच समझ के बोला, है कि नहीं? पाकिस्तान जाने जैसा नहीं है इस समय, श्रीलंका की हालत खराब है पैसों के मामले में, तो आसपास में तो नेपाल ही सही लग रहा है। भूटान काफी छोटा है, तुम लोग अकोमोडेट नहीं हो पाओगे, नेपाल काफी बेटर ऑप्शन लग रहा है मुझे, ठीक है, और कोऑर्डिनेटर तो पता ही कौन है, नाम लिए बिना समझ जाना है बाबा कोऑर्डिनेटर कौन है, तो
अभी पहुंच गए नेपाल, कोऑर्डिनेटर ने बोल दिया नेक्स्ट डे 7 o'clock अर्ली मॉर्निंग आ जाना है। तो बाबा सब लोग कैसे करके पहुंच गए 7 बजे उधर, बराबर। बोले साइट सीइंग के लिए आना है, तो 7 बजे बस में 7 बजे आ गए। 15-20 मिनट सर बोलते ही ये बताइए आपको 15-20 मिनट फिर सर ने बताया सब कुछ क्या है कैसा है क्या है। फिर 7:20 को तुम्हें बस में बिठा दिया, 7:20 बस निकल गई, बराबर। 2.5 आवर अप्रॉक्स की जर्नी पे जो स्पॉट है वो उधर जाना है। तो जब वहाँ पे स्पॉट गए तो वहाँ पे एक ऐसे ग्लास का बहुत बड़ा कंटेनर दिख रहा है, काफी बड़ा कंटेनर है, बराबर। जहाँ पे ऐसे लेवल्स मार्क किए हुए A, B, C, D लाइक दैट। और ग्लास का मतलब उस कंटेनर का ये जो पार्ट है ये दिख रहा है, आसपास का बाकी पार्ट कवर्ड है। तो आपको पहले तो समझ नहीं आया, फिर दिखाया गया, फिर सर ने बताया, एक्सप्लेन किया पूरा कि ये वाटर जो लेवल दिख रहा है नोटेड डाउन, ये लेवल A है करके, बराबर। ऐसा सब बताया। तो आपने बोला कि लगता है कुछ है इसमें, वो अलग चीज रहेगी। सबने बुक भी किया था, वो लेवल A करके नोट कर दिया कि लेवल A। उन्होंने बोला कि डे 1 लेवल 1 ऐसा। तो ठीक है, कुछ तो रहेगा, बताना चाहते रहेंगे, ठीक है। फिर बोला कि 5 मिनट तक ऑब्जर्व करो, देखो उसको, देखा इज देयर एनी चेंज इन लेवल A, कोई चेंज नहीं। बोला ओके ठीक है। बोला डन, चलो अभी लंच के लिए भी जाना है ना, होटल में लंच है तुम्हारा। तो क्या देख लिया, वापस आए। अरे आते आते 12 साढ़े 12 1 हो जाएगा ना बाबा। आया ठीक है, आ रहे तो लंच के इंतजार में था। तो लंच के लिए पहुंच गए। फिर लंच के बाद बोला कि अभी तुम अपना एंजॉय करो इधर। हाँ, बहुत सारा गेम वगैरह, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज सब। बोला कामरान को नहीं लेके जा रहा है अभी, सर का दिस नहीं लग रही है, तो प्रिकॉशनरी कामरान। लेट्स सी। तो डे 1 लेवल A, ठीक है। फिर वापस बोल दिया कल सुबह 7 बजे से, फिर पहुंच गए सब लोग वापस यही जगह पे, वही कंटेनर देख रहे हैं, लेवल A। डे 3, डे 4 के बाद 2 लोगों ने आना बंद कर दिया। बोल दिया कि नहीं, समझ गए, बता। तो 2 लोगों ने आना बंद कर दिया, बाकी लोग अभी भी जा रहे हैं। तुम्हारी तो मजबूरी है, जाना ही पड़ेगा, साथ से भी कुछ नहीं बोल सकते। घर वालों ने पैसा भी सामने वाले को भी ट्रांसफर किया हुआ है, मतलब बच्चों पे भरोसा नहीं है बाबा, तो तुमको तो जाना ही पड़ेगा, वरना दोपहर का लंच और शाम का डिनर क्या है। चलिए ठीक है, चलो डे 4, डे 5, डे 6, डे 7, डे 8 तक बच्चों के अंदर बहुत गुस्सा आ गया। बोला क्या है वो ये रोज, अब तो रास्ता याद हो गया बाबा, ड्राइवर को आगे से राइट। डे 8 हो गया, डे 9, डे 10, 10वें दिन पे तो बच्चों को गुस्सा ही आ गया, शेष काम लेकर के था। क्या है डर सा नाटक है। बोले सर क्या विरोध लेके आते हैं, फिर लंच के लिए आते हैं, एक ही लंच रोज मिल रहा है, खिचड़ी खाने को मिल रही है। बोला नाम पिकनिक है, माहौल ये जैसा लग रहा है। टाइगर टी की ट्रैवलिंग करके आते, ये उसको दिखाते, लेवल A नोट करते, फिर चले जाते खिचड़ी खाने के लिए, और शाम को बोलते उपवास करो। तो डे 10 पे शेर कामले भड़क गया, बोला क्या है ये रोज रोज का नाटक। तभी फिर तो बताना पड़ेगी बाबा कि वाटर दिख रहा है, बोले रोज यही दिख रहा है। तो बोला ये जो वाटर है अंदर, ये कौन से डे है? तो बोला 10 दिन से तो मैं ही दिख रहा हूँ, इसके पहले से कितने दिन का आई डोंट नो। तो मतलब शेष कामले ने अपने आंसर में बोल दिया डे 10, बराबर। फिर आसपास के जो बोले थे ना कि कवर किया होता उसको हटाया गया। इस कंटेनर में इधर एक इनलेट है और इधर एक आउटलेट है, where the diameter of inlet is exactly equal to the diameter of outlet। जितना पानी यहाँ से अंदर आ रहा है, एग्जैक्ट सेम अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ से बाहर जा रहा है, समझा? अब वापस पूछा गया शेष कामले को और सबको
कौन सा डे का वाटर होगा? अच्छा ये डे 1 बोला था उसने, बोला मैं फर्स्ट डे से देख रहा हूँ तो शायद वही होगा डे 1 का ही। अब उसको पूछा गया वापस कौन सा डे का वाटर होगा, बोला क्या पता तो मिक्स रहेगा, हो सकता है डे 2 डे 3 डे 4 डे 7 डे 10 भी हो सकता है, आया ना, बट लेवल तो एक ही था ना, क्योंकि जो रेट से वाटर अंदर आ रहा था वही सेम रेट से वाटर बराबर। It was appeared as static, but it is dynamic. ये appear हुआ static, but ये है dynamic. ये ऐसा लगा कि कुछ नहीं हो रहा है, but there is change. अंदर change चल रहा है. There is change in composition. There is change in composition. Yes. समझा? इसको बोलते हैं equilibrium. क्या बोलेंगे? Equilibrium. क्या था इसमें equilibrium? Rate of inflow of water is exactly equal to the rate of outflow of water. ये जो रेट कन्वर्जन है A to B जो कन्वर्ट हो रहा है जितना अमाउंट उतना ही अमाउंट B to A भी जा रहा है, और अंदर उसके जो सब्सटेंसेस हैं that keeps on changing, लेकिन बाहर से देख के लगेगा कि कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट तभी आएगी when the rate of forward reaction become exactly equal to the rate of backward reaction. Where the rate of forward reaction become exactly equal to the rate of forward reaction become exactly equal to the rate of backward reaction. Rate of forward reaction become exactly equal to the rate of backward reaction. आया समझ में बात? सवाल क्लियर हो रहा है मेरा पॉइंट? समझा मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि इसके अंदर वाटर डे 1 का नहीं है, इसके अंदर मिक्स है बाबा, डे 10 का भी हो सकता है, बट मुझे तो क्या लग रहा था कि कांस्टेंट है, कुछ हो ही नहीं रहा है ना, but it keeps on changing. This is called dynamic. जो appear होता है as a static, but that keeps on changing. That keeps on changing. You got my point, everyone? समझा मेरा बात? ठीक है, अब आ जाओ वापस बाबा, इधर आ जाओ, तुम्हारी बहुत जरूरत है, सिलेबस खत्म करना है। अब listen, एक और एग्जांपल समझाता हूँ। Let's talk about evaporation of liquid. There is liquid A जो अच्छा खासा इवेपोरेट होता है, लेट्स अज्यूम एसीटोन, ठीक है, एसीटोन अज्यूम करते हैं, ये देखिए these are the molecules of liquid A, that is acetone. तो ये मॉलिक्यूल्स के पास ना एक टेंडेंसी होती है टू गेट इवेपोरेट, और इवेपोरेशन इज समथिंग जो स्पॉन्टेनियस है, जो नेचर करता है, मेरा कोई रोल नहीं है ना उसमें, आया ना। जब सी वाटर इवेपोरेट होता है तो आप थोड़ी ना नीचे गैस लगाए रहते हो कि दिया है किसी को ये काम, नहीं ना भाई, वो कौन कर रहा है, मैंने क्या बताया था, ये स्पॉन्टेनियस है, नेचर कर रहा है, नेचर प्रोवाइड्स एनर्जी ना, कि आप एनर्जी दे रहे हैं नेचर, तो इसके पास भी मतलब खुद की एनर्जी है टू गेट इवेपोरेट, अपने मॉलिक्यूल से बाहर स्टेप होने की टेंडेंसी है उसके पास, बराबर। तो फ्यू मॉलिक्यूल्स जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं, अंदर के मॉलिक्यूल्स का कोई लेना देना नहीं होता इससे, क्योंकि अंदर के मॉलिक्यूल्स का नेट फोर्स 0 होता है, उसको चारों तरफ से एक जैसा फोर्स मिलता है। बाहर के मॉलिक्यूल्स बेचारे उतना फोर्स और अट्रैक्शन नहीं पा रहे, तो इधर उधर बाहर जा रहे, ये देखिए, ये इसका इनवर्ड फोर्स है, उसकी जो फोर्स है ना अंदर की तरफ, बाहर वो फोर्स नहीं है, बैलेंस नहीं हो रहा है, तो मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो गया, इवेपोरेट होके कहां आ गया, इधर आ गया, बोलो हाँ या ना, ठीक है। देखो मैं इसको नोट कर रहा हूं, ये T हो गया टाइम, 0 टाइम पे, वेपर प्रेशर 0 है, ठीक है, मैं वर्ड यूज कर लेता हूं, चलो प्रेशर, ठीक है, क्योंकि वेपर प्रेशर बाद में बोला जाता है, 0 पे 0, बराबर। फिर मैंने बोला आफ्टर 5 मिनट्स, मैंने नोट किया वेपर प्रेशर 10 था, ठीक है, या फिर चलो आफ्टर 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, ये 10, ये 12, 15, 20, बराबर। आफ्टर 5 मिनट्स दैट वेपर प्रेशर बिकम्स 25, मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल ऊपर जमा होते जा रहे हैं धीरे-धीरे, हाँ या ना, क्योंकि प्रेशर कब एक्सर्ट होगा, when these molecules collide with the wall of container। अब ऊपर ना 3 टाइप के कोलिजन हो रहे हैं, कोलिजन नंबर 1, these molecules collide with the wall of container, these molecules collide with each other, and apart from that these molecules they collide with the surface of liquid also। मैं मॉलिक्यूल हूं, इनसे कोलाइड होगा, क्यों, मैं भी तो इधर के मॉलिक्यूल हूं ना, अट्रैक्टिव फोर्सेस है, हाँ या ना, वो बार बार बोलते रहेंगे आजा वापस आजा, आजा वापस आजा, ऐसा।
The third collision is responsible for the condensation. बट उसके लिए पहले इवापोरेशन होगा, फिर क्या स्टार्ट होगा, बराबर। अब देखो आफ्टर 6 मिनट 7 मिनट, बराबर 7 मिनट 8 मिनट में मैं रीडिंग नोट कर रहा हूँ, प्रेशर मेजर कर रहा हूँ, प्रेशर मुझे 25 25 25 ही दिख रहा है। अब यहाँ पे दो प्रोसेसेस हो रहे हैं, एक मॉलिक्यूल इवापोरेट होने का, वो स्पॉन्टेनियस है, नीचे वो कर रहा होगा, दूसरा कंडेंस होने का, वो ये लोग कर रहे हैं, मॉलिक्यूल को खींच रहे हैं, बोले आजा वापस, फिर मॉलिक्यूल इवापोरेट हो रहा है। बट अभी प्रेशर तो नहीं बढ़ रहा ना, इसका मतलब जितना मॉलिक्यूल जा रहा है उतना ही मॉलिक्यूल, द रेट ऑफ इवापोरेशन बिकम एग्जैक्टली इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन एट द स्टेज। अगर 1 मिनट के अंदर 5 मॉलिक्यूल ऊपर गए तो 1 मिनट के अंदर ही 5 मॉलिक्यूल ऊपर से नीचे भी आ गए। यू गॉट माय पॉइंट? मैं क्या बोलना चाहता हूं? अरे हाँ है ना, पक्का मैं अकेले तो नहीं समझ रहा हूं। अभी थोड़ी देर पहले रिवाइज किया आपने आपको आज वाली क्लास में, ऐसा कुछ भी तो बता दे भाई, तो कोई सोच रहा हो सर का रिवाइज हो जाए कम से कम। आ रहा समझ में? मैंने क्या बोला वो समझा कि ये डेटा दिखा मतलब ही क्या समझ में आ गया कि नाउ इट इज एट, हाँ मैंने वेपर प्रेशर को यही चीज सैचुरेशन लेवल बोल के डिफाइन की थी पहले, इट इज एट सैचुरेशन लेवल और इक्विलिब्रियम लेवल, दैट इज व्हाट इक्विलिब्रियम, मतलब व्हाट वो कंडीशन क्या इक्विलिब्रियम की, that rate of forward should be exactly equal to the rate of backward. For this particular reaction, that rate of evaporation is exactly equal to the rate of condensation. You got my point? Yes sir. आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? एक और एग्जांपल इसी से समझाता हूँ, ठीक है? धीरे धीरे मैं अब केमिस्ट्री की तरफ आते जा रहा हूँ, रिएक्शन की तरफ आते जा रहा हूँ। पहले इसी इन जनरल एग्जांपल समझा दिया, फिर दूसरी बार केमिस्ट्री रिलेटेड ही वेपर प्रेशर का एग्जांपल समझाया। अब मैं मोल के टर्म्स में समझा रहा हूँ। देयर इज A, देयर इज B, बराबर। नोबडी नोज A कौन है और B कौन है, ठीक है? X और Y तो सब जानते हैं। लेट्स A और B के टर्म्स में देखो, at t equal to 0, at t equal to 0, A का 10 मोल है, B का 0 मोल है, सब B 0 ही होगा ना हमेशा। क्या पता आप B पहले से 2 मोल रखे हो तो कंटेनर में, तो 2 मोल हुआ ना, तो ऐसा मत सोचना 0 ही होगा हमेशा। बोले इसमें स्पेसिफाई क्या करना है, 0 है, वो कुछ भी हो सकता है भाई, वो स्पेसिफाई करता है कि एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन इनिशियली, इसका मतलब ये हुआ कि A रिएक्टेंट जो होगा सर्टेन अमाउंट, B इज 0। अरे समझ आ रहा है, क्लियर हो रहा है बात, ठीक है? उधर पीछे आ रहा है ना, ये इजी पार्ट है जो आज पूरा पढ़ा रहा हूं, इसमें से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में जेईई के, तो अगर बन गया तो इतना पार्ट करके चले जाना, ये आ जाएगा तुम्हें, बहुत इजीली आ जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। मैं बोलता हूं आफ्टर 5 मिनट्स 8 मोल, ये 2 मोल, बिकॉज़ द रेशियो इज 1:1 ना, 2 मोल इधर से उधर शिफ्ट, ठीक। आफ्टर 10 मिनट्स, चलिए इसे मैं ऐसे मान लेता हूँ, शायद ये 6 और ये 4 मान लेता हूँ मैं, ठीक है? ये 3 मान रहा हूँ, ये 7 मान रहा हूँ, बराबर। 3 मोल बचा, उधर 7 मोल कन्वर्ट हो गया, एग्री? 20 मिनट्स, 30 मिनट, अब मैं रिएक्शन को क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा हूँ। आफ्टर 20 मिनट्स, आफ्टर 30 मिनट्स, 3 मोल्स ऑफ A, 7 मोल्स ऑफ B, 3 मोल्स ऑफ A, 7 मोल्स ऑफ B, मतलब इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। अब इस स्टेज पे ऐसा हो रहा है कि जितना यहाँ से A कन्वर्ट हो रहा होगा B में, उतना ही B से A में भी कन्वर्ट होगा, मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज एग्जैक्टली इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ A? मैं बोलता हूँ ये 10 मोल था ना, ये 1 लीटर के कंटेनर में हो रहा है, तो कंसंट्रेशन उस हिसाब से यहाँ पे क्या हो गया 3, यहाँ क्या हो गया 7, तो क्या कंसंट्रेशन भी इक्वल है? नहीं, कांस्टेंट तो है, नहीं समझा? कंसंट्रेशंस आर कांस्टेंट, वो होना चाहिए, वो होना चाहिए, नहीं समझा मेरा बात? A B, ठीक है? 10 0, 10 0, फिर मान लीजिए ये 8, ये 2, ये 7, ये 3, ये 6, ये 4, ये 5, ये 5, ये 5, ये 5, ये 5, वो 5, 3 5,
where rate of forward reaction is exactly equal to the rate of backward reaction. Here the concentrations are also equal. इधर concentration equal नहीं। मैंने कहा बोला इक्वल होना, मैं तो उसकी बात भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ क्या बोल रहा हूँ, फॉरवर्ड रिएक्शन रेट शुड बी एग्जैक्टली इक्वल टू द बैकवर्ड। जब आपके रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एग्जैक्टली इक्वल हो जाए रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, तभी इक्विलिब्रियम बोलना है। कंसंट्रेशन इक्वल हो नहीं हो उससे मतलब नहीं है, कंसंट्रेशन शुड बी कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम के समय कंसंट्रेशन कांस्टेंट होना चाहिए। यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, हाँ, यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, हाँ, यहाँ इक्वल था, यहाँ इक्वल नहीं। क्या फर्क पड़ता है मुझे भाई? नहीं समझा मेरा बात? सुने मेरी बात को, समझे? ठीक है, वन मोर, now this is the last one, A D रहा। अभी इस समय कैसा है मालूम है कि मान लो चलो इसकी जरूरत नहीं है, दो मैंने ऑलरेडी बता दी, ठीक है। तो व्हाट इज इक्विलिब्रियम स्टेट? किसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट? इट इज द स्टेट एट व्हिच द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज एग्जैक्टली इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड इज एग्जैक्टली इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। concentration of each reactant and product remain constant. Please now see these, यहाँ पे जो ग्राफ है वो है concentration versus time, बराबर? इनिशियली ये रिएक्टेंट का concentration था, प्रोडक्ट का ये सर जीरो नहीं था, मैंने बोला ना जीरो से ज्यादा भी हो सकता है भाई, तुम जीरो मान के चलते हो, मैं बोलता हूँ 2 मोल किसी ने बी ऐड कर दिए तो मान लो मैं रिएक्शन स्टार्ट किया था 5 मोल बी बना, मैं तो मैं देख के चला गया, बोला भाई ये 5 मोल बी बना है, तू अपनी कंटेनर में डाल दे। नहीं समझा? तो तुम्हारे पास बी तो है ना पहले से, तो सब भी हो सकता है। But after this stage, take this, after this stage, don't you think that concentrations remain constant? Yes. If I consider this as a rate of forward reaction and this as a rate of backward reaction, so can I say this system is at equilibrium? No, because the rate of forward is not exactly equal to the rate of backward. Their concentrations are constant. Their rates are not same. मैंने क्या बताया था? कंडीशन क्या है? Rate of forward should be equal to rate of backward. तो इसमें रेट इक्वल हो गई क्या? बोला इक्वल मतलब क्या होता है? ये ऊपर इसकी रेट देखो, अगर कंपेयर की जाए तो ज्यादा होगी, ये क्या है? कम है। नहीं समझा मेरा बात? कंसंट्रेशन इक्वल है, मतलब कंसंट्रेशन कांस्टेंट है। रेट ऑफ फॉरवर्ड इज नॉट इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। सेम हियर, कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गया, देखो रेट ऑफ फॉरवर्ड इज नॉट इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। नेक्स्ट, कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गया, देखो rate of forward is equal to rate of backward and the reaction is at equilibrium. The reaction is at equilibrium. बराबर। Only third term represent RF equal to RP. Rest to first and second represent equilibrium with respect to concentration only. वो अपने काम की equilibrium नहीं है। आपको समझा बराबर? तो अभी इसके नीचे में एक और ग्राफ बताऊंगा आपको, जिसमें मैं रेट के with respect to कंपेयर करूंगा। ठीक है? आपको सिर्फ ऐसा सोचना है कि मेन चीज क्या है? Forward rate of forward should be exactly equal to the rate of backward. If I यहाँ पे अगर मैं rate versus time का कर्व ड्रॉ करूँ, तो इनिशियली rate of evaporation क्या था? बहुत ज्यादा होगा, धीरे धीरे कम होगा, फिर एक स्टेज आएगी जब ऐसा हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। रेट ऑफ ये कंडेंसेशन क्या था? जीरो था। पहले मॉलिक्यूल तो बने बाबा, अरे हाँ है ना, पहले बच्चे आए तब पढ़ाओ कि पहले पढ़ाई दो किसको? अपने आप को। वैसा हुआ ना, प्रोसेस स्टार्ट तो नहीं, स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, एक ऐसा स्टेज आएगा जब इक्वल, तो ये स्टेज पे क्या हुआ? रेट ऑफ फॉरवर्ड इज एग्जैक्टली रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ, शुरुआत में ये रेट था कंसंट्रेशन, धीरे धीरे ये रेट आ गई, फिर इधर से जाएगा, समझ आ रहा है? तो इस स्टेज पे क्या होता है? RF इज इक्वल टू RP. Rate of forward reaction is exactly equal to the rate of backward reaction. Rate of forward reaction is exactly equal to the rate of backward reaction. समझ गए मेरी बात को? बोलो हाँ या ना? Everyone clear मेरे points? Now this is the most important part, characteristics of equilibrium. ठीक है? देखिए, concentration of each reactant and product is constant at equilibrium stage. वो होना ही पड़ेगा। क्या यहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गए? हाँ, वो इक्वल भले नहीं है बट कंसंट्रेशंस आर कांस्टेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड
कांस्टेंट अलग चीज होती है, कांस्टेंट होना अलग चीज है, इक्वल होना अलग चीज है। तुम्हारे पास 10 दिन से 500 रुपए है, मेरे पास 10 दिन से 5 रुपए है, 10 दिन से यही है ना, तो कांस्टेंट ही हो गया। दोनों के पैसे कांस्टेंट है पर दोनों के पैसे इक्वल नहीं है। 10 दिन से तुम्हारे पास भी 50 है, 10 दिन से मेरे पास भी 50 है, तो दोनों के पैसे कांस्टेंट है और दोनों के पैसे इक्वल भी है। नहीं समझा? इससे इजी लेवल पे नहीं समझा सकता मैं बाबा। इट इज डायनामिक इन नेचर। समझो एग्जांपल, वो अपीयर हो रहा था स्टैटिक, इट अपीयर्स एज स्टैटिक बट इट इज डायनामिक, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, इट कीप्स ऑन मूविंग। नहीं समझा? नेक्स्ट, एवरीबॉडी नोज अबाउट दिस। At equilibrium, delta G is equal to 0. Already we have discussed in thermodynamics regarding the spontaneity. If the value of delta G is negative, then the reaction is spontaneous. If the value of delta G is positive, then the reaction is non-spontaneous. And if in the process, if the value of delta G comes 0, it means the reaction is. अब समझ गए मेरी बात? बोलो हाँ या ना? ठीक है? Next. At equilibrium, delta G क्या है? 0. Equilibrium is always attained in closed container only. Characteristics याद करनी रहेगी, ठीक है? मैं आपको टाइम दूंगा थोड़ा सा। Equilibrium can be attained by either reactant side or product side. बराबर? वो ऐसा भी हो सकता है कि rate of forward मान लो slow है, fast है, तो backward अपने आप को fast कर ले और दोनों की rate क्या हो जाए? equal. मान लो rate of forward reaction fast है, backward slow है, तो forward अपने आप को slow कर दे थोड़ा, वो रिएक्शन स्लो होने लगे, तो ये इक्विलिब्रियम कहां से अटेन हुई? फॉरवर्ड साइड से। पहले वाले में कहां से अटेन हुई? बैकवर्ड साइड से। ये तो आपको याद रखना है, इसका कुछ बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है। समझा मेरा बात? नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एट इक्विलिब्रियम देयर विल बी नो चेंज इन एनी ऑफ द मेजरेबल प्रॉपर्टी, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, प्रेशर ऑफ सिस्टम। कुछ भी चेंज हुआ तो इक्विलिब्रियम गेट डिस्टर्ब। वो ग्लास कंटेनर में कामरान ने ऐसे छोटा सा पत्थर मार दिया, अच्छा कामरान तो जा ही नहीं गए, तो क्या हुआ फिर? इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया ना, एक और आउटलेट आ गया ना, उसके थ्रू पानी जाने लगा, एट लेवल गोज ऑन। नहीं समझा? तो एक स्ट्रेस अप्लाई हो गई ना, इसका कंसीक्वेंस किसी और दिन समझाऊंगा अगले लेक्चर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, समझा मेरा बात? ये जो कामरान ने ऐसे समझो, मान लो कंटेनर में सब एक स्टोन फेंक दिया और एक छोटा सा पोर जनरेट हो गया, एक होल जनरेट हो गया, पानी बाहर आने लगा, मतलब एक एक्सटर्नल स्ट्रेस बाहर से आ गई ना, किसको? सिस्टम को। वो सिस्टम है ना मेरी, इसका कंसीक्वेंस समझाऊंगा बाद में, ये दिमाग में रखना है। तो लेकिन उससे ये तो अफेक्ट हो गया ना, तो डोंट यू थिंक दैट इक्विलिब्रियम गेट डिस्टर्ब? यस। अभी यहां तक पॉइंट है, इसके आगे क्या होगा उस दिन समझाऊंगा। सवाल ही जान लोगे तो फिर क्या मतलब है? नेक्स्ट, equilibrium point is detected either by concentration, pressure or color change. Let me give you one example. ये N2O4 गैस है कंटेनर में, ये कंटेनर जो दिख रहा है आपको, क्या यहाँ पे गैस दिख रही है? हाँ, कलरलेस गैस, ठीक है। Now once you start heating, that N2O4 slowly gets converted into NO2, और NO2 का कलर होता है ब्राउन। तो शुरुआत में कलरलेस गैसेस ज्यादा है, ब्राउन कम है, तो लाइट ब्राउन रहा है ना, फिर थोड़ा और बढ़ा, फिर थोड़ा और बढ़ा, फिर और बढ़ा, हाँ या ना? इंटेंसिटी, वो ब्राउन कलर थोड़ा धीरे धीरे क्या होता है? ब्राइट होता जा रहा है, फिर वैसा ब्राउन हो गया, वो जो ऐसा हेयर ऊपर करके नहीं रखते ब्राउन बीच बीच में, वैसा ब्राउन हो गया। केटीएम बाइक और डीएसएलआर के साथ कैर स्पाइक रहती है सारी, ब्राउन हुआ, वो उतना ब्राउन हो गया। अब इसके बाद ब्राउन होना बंद, अब कलर में ब्राइटनेस में चेंज नहीं आ रहा है, अब ब्राइटनेस में चेंज नहीं आ रहा है, एक ही जैसा दिख रहा है वो। मतलब अब जितना NO4 से NO2 बन रहा है, उतना सेम NO2 से NO4 कन्वर्ट हो रहा है। तो कलर चेंज देखना वो विजिबल है, कलर ब्लाइंडनेस ना हो बस। अरे अब तो बाबा तुमको सब एक ही जैसा दिख रहा है, कुछ सर्टेन कलर्स में होता है ना, वो सब में होता है बस। ग्रीन और रेड, ग्रीन और रेड सब नहीं मोस्टली दो कलर मिलते हैं, हां
इसलिए बोलते हैं लड़कियों को बहुत पंचायत होती है। बॉयज को इतना कुछ बोलेंगे, बोले कोई भी कलर है वो क्या है, हाँ? तब तो फिर वो ये वाला भी एंगल है तुम्हारा, मतलब तो पता ही नहीं था शायद से। लेट्स सी। तो ठीक है, 2 मिनट का डिस्कशन हुआ बाबा, कौन जीता, कौन सा था कलर? चेक करके बताते नेक्स्ट चलो, ये समझा, इजी टू अंडरस्टैंड क्यों लिखा है, कलर चेंज समझना अपने लिए आसान होता है। नेक्स्ट, these are the curves, these are the graph, ये दिख रहा है, rate of forward is exactly equal to the rate of backward, इसमें नहीं है। नेक्स्ट, ये भी नहीं है, समझा कैसे? यहाँ पे भले कॉन्सेंट्रेशंस कांस्टेंट हो जाए बट रेट ऑफ फॉरवर्ड एग्जैक्टली इक्वल रेट ऑफ बैकवर्ड के, हाँ वो 5 और 15 हो चुके हैं बट कन्वर्जन के टाइम पे अलग अलग कन्वर्ट हो रहे हैं, तो मेरे काम का नहीं है। आप समझे मेरी बात को? ठीक है। नेक्स्ट, इक्विलिब्रियम may be affected by change in concentration, pressure, volume etc. I told you कुछ ना कुछ वॉल्यूम से या तो प्रेशर से वो क्या होगा, अफेक्ट होगा। There will be no effect of addition of catalyst at equilibrium. कैसे? What is the role of catalyst in a chemical reaction? No, actually the word is it alters the rate of reaction. But change मतलब दोनों होता है ना भाई, आपके अंदर चेंज आया मतलब खराब भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है। चेंज आया मतलब ये नहीं अच्छा ही होता है। अपन पॉजिटिव लोग हैं, इससे पॉजिटिव चेंज मान के चलते हैं कि रेट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अपन भी वही डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम लोग भी वही डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहला एग्जांपल देखना, 1 2 3 4 5 फॉरवर्ड, 1 2 3 4 5 बैक, बराबर। ये विदाउट कैटलिस्ट था। ठीक है, अब विद कैटलिस्ट 1 2 3 में कवर हो गया, बोलो हाँ या ना? 1 2 3 में कवर हो गया। क्या समझ में आया इसमें? बोले सेकंड वाले में ना आपने कम टाइम लिया ना, बस स्टेप्स कम कर दिए। तो प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट यही अफेक्ट करता है क्या? दैट नहीं, मैं बोल लूं दैट इक्विलिब्रियम अटेन्स क्विकली, एकदम प्रिसाइज वर्ड बोला मैंने, इक्विलिब्रियम अटेन्स, बस उसने दोनों तरफ की रेट को बढ़ा दिया। तुम सब बोलोगे फर्क क्या पड़ा? इक्विलिब्रियम जल्दी आया बस, आया ना? इक्विलिब्रियम चेंज हुआ क्या? इक्विलिब्रियम जल्दी आया, नहीं समझा? आया ना? कहीं आप पैदल जाके आ रहे हैं, ठीक है, या फिर कहीं पे बाइक से आके जा रहे हैं, तो इनिशियल फाइनल सब कुछ एक ही जैसा है, फर्क ये कि उसमें टाइम थोड़ा कम लगेगा। प्रवीण ध्यान देना है भाई, हाँ समझा मेरा बात? तो इसलिए मैंने बोला देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ कैटलिस्ट एट इक्विलिब्रियम। ज्यादा से ज्यादा सिर्फ ये हो सकता है दैट सिस्टम अटेन्स इक्विलिब्रियम क्विकली, इससे ज्यादा कुछ होना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट प्लीज, समझ गए इन बातों को? ठीक है, चलो एक बार रिवाइज कर लो इतना पूरा शुरू से, एक एक स्लाइड, ये मतलब एक एक पार्ट करना, साथ है ना? ठीक है, सबका हो जाएगा तब तक। Okay, let's see. Types of equilibrium. There will be 2 types of equilibrium. One is called physical and the other one is chemical. Physical equilibrium, it involves the change in physical state of the substance. Along with that, कोई allotropy change. ठीक है, याद है diamond graphite? Graphite is the most stable form. Diamond less है. Oxygen, ozone. Oxygen is the most stable form. Ozone thermodynamically stable नहीं होता है. Ozone is thermodynamically less stable. ठीक है, केमिकल में वो आएंगे जिनमें ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड होगा। अभी के लिए बेसिकली हम केमिकल इक्विलिब्रियम ही डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट, सॉरी, homogeneous and heterogeneous, there are 2 types. If all the reagents are found in the same phase, if all the reagents are found in a same phase, then it is homogeneous equilibrium. अगर reagent, when I say reagent, it means reactant and product both the parts.
अगर वो अलग अलग फेज में है, दो या दो से ज्यादा फेज दिख रहा है वहां, so that will be heterogeneous, simple एकदम, ठीक है। गैस फॉर्म, गैस फॉर्म, गैस फॉर्म, बराबर, सॉलिड, गैस, गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, फाउंड इन गैसियस स्टेट, ठीक है। अब जो मेन पार्ट पढ़ना है वो पढ़ते हैं, जो मैं थ्योरी बोल रहा था ना, ये थ्योरेटिकल पार्ट है, यही वो थ्योरेटिकल पार्ट जो बताता है इन सब बातों के बारे में। लॉ ऑफ मास एक्शन, लोमा, क्या नाम है, लोमा, लॉ ऑफ मास एक्शन। इट इज गिवन बाय गुलबर्ग एंड वागे, वाग, जो बोलना है बोलो, ठीक है, वाग मत बोलो बस। इट इज व्हिच काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट, theoretical concepts, I told you. इसकी practical approach है chemical kinetics. The rate at which substance react is directly proportional to active mass of the substance. Basically इस word का मतलब क्या होता है, ठीक है। पहले एग्जांपल में समझ जाना, वरना दूसरा एग्जांपल शायद बुरा लगता है। पहला एग्जांपल ऐसा है कि मान लो सब्सटेंस है 50 ग्राम, कितना ग्राम, बट आप रिएक्शन में सिर्फ 20 ग्राम ही यूज करने वाले हो, मतलब कहीं 50 लोग हैं बट काम 20 लोग ही हैं, समझ गए ना एकदम। 50 ग्राम 20 ग्राम समझा भी कैसा है, यूज यही होने वाला है, ये 30 ऐसे का ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो एक्टिव मास ऑफ द सब्सटेंस कहां से आएगा, यस, बहुत बार ऐसा होगा ना रिएक्शन में, सब्सटेंस मास कितना भी, इसलिए वो वर्ड दिया है। लोगों को क्या लगता है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कंसंट्रेशन एंड एक्टिव मास ऑफ द सब्सटेंस, नो, देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस, वो डिफरेंस ये एक्टिव मास ऑफ द सब्सटेंस व्हेन यू से, बराबर। बेसिकली इनिशियली जो मास रिएक्ट होने के लिए अवेलेबल है वो होगा एक्टिव मास, वो क्या होगा, एक्टिव मास ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो मैं अगर ऐसा बोलता हूं कि एक रिएक्शन है, ठीक है, अच्छा ये चलो मैं बाद में बोलता हूं, ये लॉ का स्टेटमेंट, उससे पहले मैं कुछ और बात कर रहा था, ये पहले लिख दिया मैंने, एक्चुअली ये पहले लिखना था। एक्टिव मास की मीनिंग क्या होगी कि इट इज मास व्हिच इज एक्टिव और व्हिच फर्स्ट पार्टिसिपेट इन रिएक्शन। ऐसा मास जो एक्टिव है, मतलब जो वहां पे रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, ये जो पहले पार्टिसिपेट करे, उस मास को हम क्या नाम देते हैं, एक्टिव मास। फॉर सोल्यूट इन सॉल्यूशन, दैट इज एक्वस रिएक्शन, एक्टिव मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोलार कॉन्सेंट्रेशन, उसका जो मोलार कॉन्सेंट्रेशन होगा उसे एक्टिव मास बोला जाएगा। मोलार कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकाला जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मोलारिटी, मोलार कॉन्सेंट्रेशन, मोल पर लीटर। एक्टिव मास ऑफ प्योर सॉलिड एंड लिक्विड इज टेकन एज यूनिटी, उनके एक्टिव मास का कंसीडरेशन नहीं किया जाएगा, क्यों, वो आप आगे समझ जाएंगे, ठीक है। गैस के अंदर मोलार कॉन्सेंट्रेशन भी बोल सकते हो, गैस के अंदर पार्शियल प्रेशर भी बोल सकते हो। नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। आगे करना, आइडियल गैस की इक्वेशन क्या है, Pv equal to nRT, P is equal to n by V into RT. This reaction takes place at constant temperature, R is already constant, P is proportional to C. मतलब उसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन भी यूज कर सकते हो, उसके अंदर पार्शियल प्रेशर भी यूज कर सकते हो। तो जो पार्शियल प्रेशर यूज किया और मोलार कॉन्सेंट्रेशन भी यूज किया, मैं दोनों यूज कर सकता हूं, आया समझ में, ठीक है। ऊपर करना, जो पुरानी स्टेटमेंट थी ना उसके लिए मैं एक रिएक्शन कंसीडर कर रहा हूं, थ्योरेटिकल पार्ट ध्यान से देखिए। एक रिएक्शन है मेरे पास इस तरीके से, ठीक है। इस रिएक्शन के अंदर मैं बोलता हूं दिस इज द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड दिस इज द रेट ऑफ बैकवर्ड। वे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये जो लॉ बोलता है, लॉ क्या बोलता है कि किसी भी रिएक्शन में द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल, द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, to the concentration of reactants, वो proportional है to the concentration of reactant raised to power of their stoichiometric coefficients। अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट है तो it is proportional to the product of active masses। मैं एक्टिव मास की जगह कंसंट्रेशन वर्ड यूज कर रहा हूं, अपने लिए अभी के लिए वो दोनों सेम ही है, आप मीनिंग समझ चुके हैं, बट प्रैक्टिकली दोनों अलग हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब समझा, मल्टीप्लिकेशन, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट वेयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स आर टेकन एज पावर और रेज़ टू पावर। मतलब मैं क्या लिखना चाहता हूं, बोलो इनडायरेक्टली, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू concentration of A raised to A, concentration of B raised to B। सही है, बोलो हाँ है ना। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन में मैं क्या बोलूंगा, इट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ C raised to C,
concentration of T raised to T. क्या बोलते हैं सही है? If you remove the proportionality sign तो क्या हो जाएगा बोलो? RF is equal to KF. That KF is the proportionality constant for the forward reaction into A raised to A, B raised to B. What is a yes or no? ठीक है? सही लगे तो बोलना. That rate of backward reaction is equal to what? KB, C raised to C and D raised to D at equilibrium stage. At yes, at equilibrium stage, what we write? RF is equal to मतलब this part is equal to this part. तो क्या लिखो बोलो? KF A raised to A, B raised to B is equal to come on KB C raised to C, D raised to D. Clear? Can I write it like this? KF upon KB. What do you say? Yes or no? KF upon KB. क्या आ जाएगा? Concentration of C raised to C, concentration of D raised to D upon concentration of A raised to A, concentration of D raised to D. Constant upon constant is another constant, that is K, called as equilibrium constant, called as equilibrium constant. क्योंकि ये सिर्फ equilibrium पे ही बात हो रही है ना, इसलिए उस constant का नाम ही दे दिया equilibrium constant, which is concentration of product बराबर upon concentration of reactant raised to power of their stoichiometric coefficients. This K can be of two types. This equilibrium constant can be of two types. ये जो equilibrium constant है ये आप दो टर्म में देख सकते हो, एक Kc के टर्म्स में और एक Kp के टर्म्स में. मैंने बोला था ना मोलर concentration भी हो सकता है, प्रेशर भी हो सकता है. This is called equilibrium constant. What it is called? Equilibrium Constant. with respect to concentration. This is called equilibrium constant with respect to pressure. सही है? This is equilibrium constant with respect to concentration. This is equilibrium constant with respect to pressure. Kc के टर्म्स को मैं कैसे लिखूंगा? Kc के टर्म में क्या लिखूंगा बोलिए? Concentration of C raised to C, concentration of D raised to D. This is A raised to A, B raised to B. Already we have discussed, already we have proved that pressure is proportional to concentration. याद आ रहा है? तो इसकी जगह पे मैं उसे लिख रहा हूँ Kp के टर्म्स में. देखो Kp में क्या लिखूंगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ C raised to C, partial pressure of D raised to D, partial pressure of A raised to A, partial pressure of B raised to B. If any pure solid or pure liquid is there, तो उन्हें कंसिडरेशन नहीं किया जाएगा क्योंकि उनके एक्टिव मासेस को 1 माना जाता है, 0 नहीं. क्या माना जाता है? अब 1 रहेगा तो लिखा नहीं लिखा क्या फर्क पड़ता है? अरे हाँ यार, 1:2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, कुछ भी आ जाए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है. नहीं है? Kc is equilibrium constant with respect to concentration. Kp is equilibrium constant with respect to partial pressure. If any pure solid or liquid is there, तो कोई बात का रिप्रेजेंटेशन उसका करना नहीं है, उसको 1 मान के छोड़ देना है. क्लियर हो गया ये बात? ठीक है. एक क्वेश्चन समझाता हूँ. ये Kc और Kp समझ गए? क्वेश्चन है राइट द एक्सप्रेशन for Kc and Kp. Write the expression for Kc and Kp. First, nitrogen gas react with hydrogen gas, give you ammonia gas. Now, ये सॉल्विंग पार्ट है ना, इसलिए आपको पूरा लिख के बता रहा हूँ. अभी तक थ्योरी पार्ट का अपना डिस्कशन जो किया. ठीक है? आई होप Kc लिख पाएंगे आप. इक्विलिब्रियम. ठीक है? स्टार्ट. Concentration of product upon concentration of reactant raised to power of their coefficients. Agree? आ रहा है सबको? Kp लिख पाओगे? Kp बोलो क्या हो जाएगा? Partial pressure of ammonia
raised to 2 partial pressure of N2 partial pressure of H2। क्या बोलते हो, सही है? हाँ ना बोल दो भाई। A gas plus 2 B gas give you 3 C gas। Kc कैसे लिखा जाएगा बताइए? C ना concentration of C raised to 3 upon concentration of A, concentration of B raised to 2। What about Kp? Partial pressure of C raised to 3 upon A raised to 1, partial pressure of B raised to 2। नाइस, समझ लो। CaCO3 is in solid form, okay? That CaCO3 gives you CaO solid plus CO2 gas। What about Kc? क्या लिखूं? CO2 concentration of CO2 1 upon nothing, क्योंकि solid तो 1 हो गया ना, तो into 1 raised to 1 upon 1 क्या है? कुछ नहीं ना, तो उसको लिखना ही क्यों है तुम्हें? Kc is CO2, that's it। नहीं समझा मेरा बात? क्या लग रहा है? इसलिए बोला ना ध्यान देंगे, इसमें से एक भी क्वेश्चन फंस गया तो 4 मार्क्स हो गया, इजी रहेगा, ठीक है? Kp क्या हो जाएगा बोलो? Kp partial pressure of CO2, that's clear? हाँ। अब ये सब काफी वही इजी क्वेश्चन है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 निकालना है, मोल कॉन्सेंट्रेशन। व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। ये नंबर ऑफ मोल्स निकालना, ये वॉल्यूम दिया है, उस टाइप के मास फाइंड आउट करके दे दिया, ठीक है? नेक्स्ट तो ये क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे, एग्जांपल 1 2 3 जो है ये जो मैंने भी डेरिवेशन करके बताया आपको Kf Kb का वो सब है। नेक्स्ट this one is also very important point। all these equilibrium constant depends on the temperature। remember one thing, कोई भी equilibrium constant का बात होगा, it depends, totally depends on temperature। याद रखिए इस बात को। नेक्स्ट Kc Kp के बारे में जो मैंने आपको बोला है वो सब है, ठीक है? ये एग्जांपल्स का डिस्कशन है। नेक्स्ट जो अभी यहाँ पे डिस्कस की, थोड़ा सा और ये सॉलिड गैस गैस समझे, दो ही कंसीडर क्यों हुआ, इसे इग्नोर किया गया। नेक्स्ट वेट, Kx is equilibrium constant with respect to mole fraction। जैसे आप कंसंट्रेशन को लेके लिख रहे हैं, आप पार्शियल प्रेशर को लेके लिख रहे हैं, आप मोल फ्रैक्शन को भी लेके लिख सकते हैं। आया समझ में? ठीक है? अगेन दिस चलो ये Kx हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ C रेज़ टू C, मोल फ्रैक्शन ऑफ D रेज़ टू D, मोल फ्रैक्शन ऑफ A रेज़ टू A, मोल फ्रैक्शन ऑफ B रेज़ टू B। इसकी कोई यूनिट नहीं है, बिकॉज़ मोल फ्रैक्शन की खुद की कोई यूनिट नहीं है, फ्रैक्शन है ना वो, बराबर? हां, Kc Kp के तो एक बार यूनिट भी है भाई, जो मैं आपको बताऊंगा। Kc क्या है? कंसंट्रेशन। व्हाट इज कंसंट्रेशन? मोल पर लीटर, मोलैरिटी, प्रेशर, ATM। सबसे बेस्ट तो वही है ना, रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc, Kp और Kc के बीच का रिलेशन, ठीक है? देखो सेम इक्वेशन पे आगे बात कर रहे हैं। Kp को मैं ऐसे लिख रहा हूं, पार्शियल प्रेशर ऑफ C रेज़ टू C, पार्शियल प्रेशर ऑफ D रेज़ टू D, पार्शियल प्रेशर ऑफ A रेज़ टू A, पार्शियल प्रेशर ऑफ B रेज़ टू B, ठीक है? पार्शियल प्रेशर को क्या लिखा जा सकता है? P पार्शियल प्रेशर Pv equal to nRT, P is equal to n by V into RT। What is n by V? Concentration। तो P is equal to concentration into RT। तो जहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ A लिखा है वहां पे क्या मैं concentration of A into RT लिख सकता हूं? जहां पार्शियल प्रेशर ऑफ B लिखा है I will write there concentration of B into RT। तो you see Kp equal to क्या हो जाएगा मालूम है? concentration of C into RT raised to C, concentration of D RT raised to D upon concentration of A RT raised to A, concentration of B RT raised to B। आप समझ मेरी बात? RT raised to A, RT raised to A, RT raised to B, RT raised to C, RT raised to D। तो दिख रहा है तुम्हें? RT raised to C plus D upon, अच्छा अरे हाँ मुझे मैथ्स वाले ये तो डायरेक्ट बता सकता था, बराबर? RT raised to C plus D minus A plus B, RT raised to delta Ng। कुछ याद है? डेल्टा Ng is what? Number of moles of product
minus number of moles of reactant. C plus D are the coefficients of product. A plus B are the coefficients of reactant. Concentration of C raised to C, concentration of D raised to D upon concentration of A raised to A, concentration of B raised to B. Kc. तो इक्वेशन क्या बन गई? Kp is equal to Kc RT raised to delta Ng. बराबर. Case 1. मैथमेटिकली अगर मैं बोलूं टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 12 केल्विन, मैं ऐसा क्यों बोलना चाहता हूं? इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 12 केल्विन, R को क्या मानते हैं मालूम है? 1/12 लीटर एटमॉस्फेयर बराबर पर मोल केल्विन. अगर T 12 से बड़ा है तो अलग सिचुएशन होगी. अगर T 12 से छोटा है तो ये रेशियो में चेंज आ जाएगा. समझा कैसे? तब ये 1 से छोटा आ जाएगा ना. 1 से छोटा होगा तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये कम हो जाएगा. नहीं समझा? बट बेसिकली कंडीशन यही रहती है हमेशा. इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 12 केल्विन, आप इसी से समझ के जाएंगे. तो मैं क्या लिखूंगा? T ग्रेटर देन 12 केल्विन है ना, एंड इन दैट केस डेल्टा Ng इज इक्वल टू 0. तो दिस इज रेज्ड टू 0, मतलब ये 1 हो गया. सो इन दैट केस Kp इज इक्वल टू, ये तो हर केस में होने वाला है, टेम्परेचर कुछ भी रहे, ग्रेटर देन 12 या लेस देन 12, फर्क नहीं पड़ता. डू यू एग्री विद दिस? इफ डेल्टा Ng इज पॉजिटिव, इस पे कई बार क्वेश्चन आया है जेईई में. ठीक है, इन सब बातों पे कई बार क्वेश्चन बना है जेईई में, एंड आपको डेल्टा Ng देखने अच्छे से आता है, ऐसा मेरा मानना है. डेल्टा Ng इज पॉजिटिव, रेज टू पॉजिटिव हो गया. ये टर्म तो ऑलरेडी पॉजिटिव ही होगा. पॉजिटिव बोलने का मतलब 1 से बड़ा होगा, क्योंकि ये सामने वाला 12 से बड़ा है ना. 1/12 into 12 नहीं होगा, 1/12 into 13 तो एटलीस्ट है. तो ये नंबर 1 से बड़ा आएगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू बढ़ के आएगी. वैल्यू बढ़ के आई मतलब Kp is greater than Kc. You agree? Yes. If delta Ng is equal to negative, so in that case Kp is less than Kc. You agree? Yes. अगर टेम्परेचर ग्रेटर लेस देन 12 हुआ ना तो ये दोनों चीजें चेंज हो जाएंगी. ये ज्यादातर यूज में आएगा, वो बहुत रेयर केस है. ठीक है, फिर भी लिख देता हूं तुम्हारे लिए, तुम इस पे फोकस करेंगे. T is less than 12 केल्विन बराबर. डेल्टा Ng वो तो 0 है, तो Kp equal to Kc होना ही होना है. आना बोल दो भाई. ठीक है, और अगर डेल्टा Ng पॉजिटिव हो गया तो उल्टा हो गया. Kp is less than Kc, और डेल्टा Ng अगर नेगेटिव हो गया तो Kp is greater than Kc. You got my point? बराबर. मैं एक एग्जांपल बोलता हूं जिसमें ऐसा अज्यूम करते चलिए टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 12 केल्विन. मैंने कुछ नहीं स्पेसिफाई किया, देन आल्सो टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 12 केल्विन. PCl5 gives PCl3 plus Cl2, gas. What is delta Ng? What is delta Ng? 1. कैसे? ये 1, ये 1, 2, ये 1, delta Ng बराबर. if delta Ng is positive, Kp is greater than Kc. You got my point? तो यही सारी चीजें वहां पे मेंशन की हुई है, आप देखते जाएं खाली. ठीक है, ये Kp और Kx के बीच का रिलेशन है. दिस इज द रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kx, तो आपको याद रखना है. ठीक है, नेक्स्ट ये वो चीजें मैंने दी हुई है, मेंशन की हुई है Kp के बारे में. क्लियर है? ठीक है, ये कॉपी करें, फिर मैं ये इस एग्जांपल के बारे में बता दूं क्या करना है आपको. कॉपी करें. फर्स्ट कॉलम reaction, second column Kp, next column Kc, next column delta Ng, next column relation, next column unit of Kp, next column unit of Kc. Start. And assume that temperature is greater than 12 Kelvin. Already दिया हुआ है. ठीक है,
अभी के लिए रिलेशंस कॉपी करते जाएंगे, ठीक है? दो दो तीन तीन लाइन का गैप रखे बीच में, एक लाइन नहीं, किसी भी लिखना है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, फिर एक लाइन छूटेगा, एटलीस्ट दो इक्वेशंस के बीच में 3 लाइंस का गैप। ठीक है, दिस आर द इक्वेशंस। समझाने क्या करना है? कॉपी करके